میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و مکرم محترم عزیز دوستو، میں نے جو آیات کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ میرے دوستو، جو بھی بندہ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے گڑ گڑا کر روئے اور اپنی گناہوں کی معافی مانگے تو رب کائنات اپنے گناہوں کی معافی دے دیتے ہیں۔ جو بندہ اسلام لانے کے لیے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کلمہ پڑھتے تھے تو ان کے پچھلے کتنے بھی گناہ ہوتے تھے معاف ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت کی بشارت بھی سنا دیتے تھے کہ آپ جنتی ہیں، ان کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے تھے۔ حضرت ثمامہ بن جمال رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، جب یہ اسلام نہیں لائے تھے، یہ یمامہ ایک علاقہ ہے، یمامہ کا ایک قبیلہ ہے جس کا نام حنیفہ ہے۔ قبیلہ حنیفہ کا یہ سردار تھا، بادشاہ تھا۔ یہ اسلام کا سخت ترین دشمن تھا اور اسلام کو گالیاں نکالتا تھا اور ہمہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے در پہ رہتا تھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو ہمہ وقت ستاتا تھا۔ یہ بادشاہ تھا نا، بنو حنیفہ ایک قبیلہ ہے، اس کا یہ بادشاہ تھا۔ اس کو بادشاہت پر بڑا ناز تھا اور لوگوں پر بڑا ظلم کیا کرتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو بے دردی کے ساتھ شہید کر ڈالا، کچھ صحابہ کرام۔ جب اس بات کا آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ جہاں بھی ملے ثمامہ بن جمال اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو مار ڈالا جائے۔ یہ اپنے علاقے سے، اپنے قبیلے سے عمرے کی نیت کے لیے مکہ المکرمہ جا رہا تھا۔ مدینے کے قریب جب پہنچا تو ایک ایسی مصیبت میں یہ پھنس چکا تھا کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ میں اس مصیبت میں کیسے پھنس چکا ہوں۔ ادھر میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو مدینہ کی طرف بھیجا کہ کہیں مدینہ کے باشندوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ثمامہ بن جمال کو گرفتار کر کے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کرنے لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور کوئی حکم صادر فرمائے، کوئی حکم اس کے بارے میں جاری فرمائے۔ جب میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے، دیکھا کہ ثمامہ بن جمال مسجد کے ایک ستون کے ساتھ باندھا ہوا ہے، مسجد کے ایک ستون کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ تو میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے فرماتے ہیں کہ آپ اس شخص کو جانتے ہو،
صحابہ کرام رضوانُल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन फरमाते हैं, हुजूर हम इस शख्स को नहीं जानते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा की जमात सुनो, ये सुमामा बिन जुमाल है, एक कबीला है हनीफा, उसका ये बादशाह है। उसका क्या है? ये बादशाह है। ये उन बादशाहों में इसका नाम शामिल होता है कि जिनकी बात को कोई टाल नहीं सकता था। जो हुक्म करते थे लोग उस हुक्म के पाबंद होते थे, लोग उस हुक्म के पाबंद होते थे। मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम से फरमाया कि आप सुमामा बिन जुमाल का ख्याल करना है। मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर गए, कुछ खाना लेकर सुमामा बिन जुमाल को देने के लिए आए। सुमामा बिन जुमाल ने वो खाना खाया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये हुक्म फरमा दिया कि जो मेरी ऊँटनी है उसका सुबह भी शाम को भी दूध निकालकर सुमामा बिन जुमाल को दिया जाए। उस ऊँटनी का दूध निकालकर सुबह को भी और शाम को भी सुमामा बिन जुमाल को दिया जाता था। और कुछ दिनों के बाद मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुमामा बिन जुमाल के पास आए और आकर मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ऐ सुमामा, मेरे बारे में आप क्या राय रखते हैं? क्या मैं आप पर जुल्म करूंगा? तो सुमामा बिन जुमाल कहते हैं, ऐ हुजूर, आप मुझ पर जुल्म नहीं करेंगे, आप तो सिला रहमी करने वाले हैं, आप तो रहमत लिल आलमीन बनकर आए हैं। मुझे आपसे अच्छी तवक्कुआत का इजहार करता हूं, अच्छी तवक्कुआत रखता हूं। फिर सुमामा बिन जुमाल कहते हैं, ओ हुजूर, अगर आपको माल चाहिए, पैसा चाहिए, तो मैं देने के लिए तैयार हूं। आपको पैसा देने के लिए तैयार हूं, आपको माल देने के लिए तैयार हूं। मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले गए और दूसरे दिन फिर मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, ऐ सुमामा, क्या आप मुझसे कैसी तवक्कुआत रखते हो? क्या मैं आप पर जुल्म करूंगा? सुमामा बिन जुमाल यही लफ्ज दोहराते हैं, तो आप तो सिला रहमी करने वाले हैं, आप रहमत लिल आलमीन बनकर आए हैं, मैं अच्छी तवक्कुआत आपसे रखता हूं। अगर आपको पैसा चाहिए, माल चाहिए, तो मैं देने के लिए तैयार हूं, मुझे रिहा कर दिया। फिर मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तीसरे दिन आए। फिर मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुमामा बिन जुमाल से वही बात कही और सुमामा बिन जुमाल ने भी जो पहले बात कही थी वही बात कही कि आप सिला रहमी करने वाले हैं, आप रहमत लिल आलमीन बनकर आए हैं, मैं आपसे अच्छी तवक्कुआत रखता हूं, आप मुझे रिहा कर दिया जाए। अगर आपको माल चाहिए, पैसा चाहिए, तो मैं देने के लिए तैयार हूं। मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन से फरमाते हैं कि इसको रिहा कर दिया जाए। इसको क्या कर दिया जाए? रिहा कर दिया जाए। सुमामा बिन जुमाल जब रिहा हो जाते, अपनी सवारी पे बैठकर मदीने के करीब एक जगह है बकी, वहां खजूरों के बागात है, उसमें एक कुआं है, वहां जाकर सुमामा बिन जुमाल ने गुस्ल किया
اور गुस्ल करके अपनी सवारी के ऊपर बैठकर मस्जिद नबी की तरफ आए। और जब मस्जिद नबी में आए तो हुजूर अलैहिस्सलात व सलाम से सुमामा बिन जुमाल कहने लगे, ऐ हुजूर, मुझे कलमा पढ़ाओ, मैं मुसलमान होना चाहता हूं, आपके इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूं, क्योंकि आप सिला रहमी करने वाले हैं, आप तो रहमत लिल आलमीन बनकर आए हैं, सच्चा दीन लेकर आप आए हैं, मैं मुसलमान होना चाहता हूं। मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलात व सलाम के हाथ पर सुमामा बिन जुमाल ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। और उसी वक्त सुमामा बिन जुमाल हुजूर अलैहिस्सलात व सलाम से फरमाते हैं, ऐ हुजूर, मैंने आपके कुछ साथियों को शहीद किया था, मारा था, कत्ल किया था, उन पर जुल्म किया था, आप मुझ पर किसास लगाना चाहते हैं, कोई हद लगाना चाहते हैं, कोई सजा देना चाहते हैं, तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलात व सलाम फरमाते हैं, ऐ सुमामा, मैं तुम्हें क्या बतलाऊं जो हमारे दीन में सच्चे दिल के साथ दाखिल होता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसके पिछले गुनाह सारे माफ फरमा देते हैं। हुजूर अलैहिस्सलात व सलाम ने फरमाया, सुमामा, आपके पिछले जितने भी गुनाह थे अल्लाह तबारक व ताला ने माफ फरमा दिए, और मैं तुझे जन्नत की खुशखबरी सुनाता हूं कि आप जन्नती है, मैं आपकी सिफारिश करूंगा और तुझे मैं जन्नत में लेकर जाऊंगा। जब सुमामा बिन जुमाल ने ये बात सुनी तो सुमामा बिन जुमाल मुस्कुराने लगे और मुस्कुराकर कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाकई मेरे पिछले सारे गुनाह माफ हो गए और मुझ पर कोई किसास नहीं है और मैं जन्नत में जाऊंगा, और आप मुझे जन्नत की खुशखबरी सुना रहे हैं। मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलात व सलाम फरमाते हैं, ऐ सुमामा, आपके पिछले सारे गुनाह माफ हो गए, आप जन्नती है। सुमामा बिन जुमाल मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलात व सलाम से फरमाते हैं, जब मुझे गिरफ्तार किया गया, आपके साथियों ने मुझे गिरफ्तार किया, तो मैं उम्रे की नीयत से उम्रा करने के लिए मक्का जा रहा। अब मेरे लिए क्या राय है, मैं उम्रा करने जाऊं, आप इजाजत दें। मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलात व सलाम ने सुमामा बिन जुमाल को उम्रे का तरीका सिखाया। सुमामा बिन जुमाल उम्रा करने के लिए मक्का गए। जब खाना काबा में दाखिल हुए तो बुलंद आवाज के साथ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कह रहे, और मुशरिकीन मक्का उस आवाज की तरफ लपकने लगे और नियाम से अपनी तलवारें निकाल ली कि इतनी बुलंद आवाज के साथ कौन अल्लाह के नाम को बुलंद कर रहा है। हमारे बुत यहां लगे हुए हैं, यहां पड़े हुए हैं, किसको जरूरत हो रही है कि इतनी बुलंद आवाज के साथ अल्लाह का नाम ले रहा है। जब देखा सुमामा बिन जुमाल है, एक आदमी ने तीर निकाला और तीर निकालकर सुमामा बिन जुमाल को मारने लगा, तो एक आदमी ने कहा कि आप सुमामा बिन जुमाल को ना मारें, इसको कत्ल ना करें, अगर हम इसको कत्ल कर देते हैं तो इसके इलाके से गल्ला आता है मक्का में, गंदम इसके इलाके से आती है, हमारी गंदम पर पाबंदी लग जाएगी, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, हमारे पास गंदम नहीं आएगी, पाबंदी लग जाएगी। सुमामा बिन जुमाल से मुशरिकीन मक्का कहने लगे कि आप बेदीन हो गए हैं, नऊजुबिल्लाह, आप पुराने दीन को छोड़कर, आबा अजदाद के दीन को छोड़कर आप नए दीन में दाखिल हो चुके हैं, कहीं आप बेदीन तो नहीं हो गए।
सुमामा बिन युबाल ने कहा कि मैं सच्चे दीन में दाखिल हुआ हूं, सच्चे इस्लाम में दाखिल हुआ हूं। मैं अब आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन चुका हूं। मैं हूं बादशाह, लेकिन गुलाम मैं आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम। मैं अपनी जान हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। जो हुक्म मुझे आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देंगे, मैं उस हुक्म की ताबेदारी करूंगा। जब सुमामा बिन युमाल अपने इलाके में गए तो सबसे पहले उसने ये काम किया कि मक्का की तरफ जो गंदम जाती थी, गल्ला जाती थी, उस पर पाबंदी लगा दी। मुशरिकीन मक्का, मक्का के बाशिंदे काज साली में मुब्तला हो गए। खाने पीने के लिए कुछ नहीं है और बच्चे भूखे मर रहे। उन्होंने मशवरा किया कि हम आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिखे। मुशरिकीन मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिखते हैं। उस खत में ये लिखते हैं कि आप सिला रहमी करने वाले हैं, आप रहमत लिल आलमीन बनकर आए हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। सुमामा बिन युमाल ने गल्ले पर पाबंदी लगा दी है। आप इस अपने सिपाही को, आप अपने इस गुलाम को कहें कि ये पाबंदी हटा दी जाए, ये पाबंदी खत्म कर दी जाए। जब खत मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुंचा तो मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस खत को पढ़ा तो मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुमामा बिन युमाल को हुक्म देते हैं कि ये जो आपने पाबंदी लगाई है, इस पाबंदी को खत्म कर दिया। सुमामा बिन युमाल ने पाबंदी को खत्म कर दे। सुमामा बिन युमाल ने पाबंदी को खत्म कर देते हैं। ये सुमामा बिन युमाल वो सहाबी रसूल है जिसने खाना काबा में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक सबसे पहले पढ़ने वाले सुमामा बिन युमाल है। ये वो सहाबी रसूल है। ये कबीला हनीफा से ताल्लुक रखने वाले हैं। इस इलाके से मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का झूठा दावा किया। वो झूठा नबूवत का दावा किया था और सुमामा बिन युमाल ने मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ मुकाबला किया। सुमामा बिन युमाल मुजाहिद खत्म नबूवत है, मुहाफिज खत्म नबूवत भी है। सुमामा बिन युमाल ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नामूस पर पहरा दिया। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी नामूस रिसालत पर पहरा दिया था। सिद्दीक़ अकबर ने मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ, इसके खिलाफ जिहाद करने के लिए लश्कर को भेजा था। सिद्दीक़ अकबर भी मुजाहिद खत्म नबूवत है। ये सुमामा बिन युमाल था जो बादशाह था, बाअसर बादशाह था। इसकी बात को टाला नहीं जाता था, लेकिन जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में आया तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जान देने वाला बना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इतनी मोहब्बत इसके दिल में आई कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोई बात नहीं टाल सकता था। ये सुमामा बिन